یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ سرکار عوام کو قانون، انصاف کی فراہمی اور مساوی فائدوں کو یقینی بنانے کی وعدہ بند۔ خنمو سری نگر میں میگا لیگل سروسز اینڈ اویئرنیس کیمپ سے کرن رجیجو کا خطاب۔ بھارتی آئین کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر کی جینتی کے سلسلے میں ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور لیفٹیننٹ گورنر کا خراج عقیدت۔ بادیوام، زیناپورہ، شوپیاں میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے مابین تصادم، لشکر طیبہ کے 4 ملیٹنٹ ہلاک۔ اور ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی بیساکھی اور مہاویر جینتی کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مرکزی سرکار لوگوں کو قانون، انصاف کی فراہمی اور مساوی فائدوں کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ ان باتوں کا اظہار قانون انصاف کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج خنمو سری نگر میں میگا لیگل سروسز اینڈ اویئرنیس کیمپ کا افتتاح کرنے کے موقع پر کیا۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی جینتی کے سلسلے میں منعقدہ اس کیمپ کا اہتمام ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی نے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کے بینر تلے کیا تھا۔ وزیر موصوف نے، جو تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، کہا کہ سرکار سماج کے تمام طبقوں کو انصاف فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی اس سمت میں نمایاں کام انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے تمام اداروں اور پبلک اتھارٹیز پر زور دیا کہ وہ سماج کے کمزور طبقوں تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ لوگ مرکزی اور یوٹی سرکار کی طرف سے فراہم کردہ اسکیموں سے مستفید ہوں۔ انہوں نے یوٹی انتظامیہ اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی ان کوششوں کو بھی سراہا جو وہ لوگوں کو بلا رکاوٹ خدمات فراہم کرنے میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کو فراہم کی جا رہی فلاحی اسکیموں اور سماجی خدمات کی عمل آوری پر لگاتار نگرانی کر رہی ہے۔ بعد میں وزیر موصوف نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے پر غلۂ عقیدت نظر کیے اور مختلف سرکاری محکموں اور بینکوں کی طرف سے لگائے گئے 25 اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ پروگرام کے دوران ڈی پی ایس سری نگر کے طلباء نے ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا۔ تقریب پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متھل اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی پیٹرن ان چیف جسٹس علی محمد ناگرے کے علاوہ دیگر کئی سینئر جج صاحبان کے ساتھ ساتھ سول انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ بھارتی آئین کے اعلیٰ معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو آج ان کے 131ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک میں کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں بابا صاحب کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نظر کیے گئے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سماجی مسلح، اقتصادی ماہر اور سیاستدان بھی تھے جنہوں نے عوام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ بابا صاحب نے معاشرے کے کمزور اور محروم طبقوں کے خلاف سماجی اور ذات پات پر مبنی تفریق ختم کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی انتھک کام کیا۔ وہ آزاد بھارت کے قانون اور انصاف محکمے کے پہلے وزیر بنے۔ انہیں 1990 میں ملک کے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ بھارت رتن سے بعد از مرگ نوازا گیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ڈاکٹر امبیڈکر کے یوم پیدائش پر غلۂ عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی۔ انہوں نے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دیگر کئی وزراء کے ہمراہ آج صبح پارلیمنٹ کے احاطے میں ان کے مجسمے پر غلۂ عقیدت نظر کیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور ممبران پارلیمان نے بھی ان کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بھارتی آئین کے اس معمار کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ بابا صاحب کا نظریہ، ان کے اقدار آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔
मेंबर पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी मुल्की आइन के मेमार आंजानी भीमराव अम्बेडकर को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत अदा किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने भारत को एक ऐसा आइन दिया जिसमें हर एक मजहब, तबका और फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को आज़ादी हासिल है। बादीगाम जैनापोरा शोपियां में आज मिलिटेंट और हिफाजती अमले के दरमियान हुए तसादुम के दौरान 4 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, जबकि इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब हिफाजती अमले ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला मिलने के फौरन बाद इस गांव को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। वहां छुपे मिलिटेंट ने हिफाजती अमले पर फायरिंग की, जिसके जवाब में ये मिलिटेंट मारे गए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इसी दौरान मुगल रोड पर आज एक फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में फौज के 2 जवान हलाक जबकि 4 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने जिला अस्पताल शोपियां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का हवाला देते हुए खबर दी है कि हादसे में शदीद तौर पर जख्मी 4 जवानों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। नामालूम बंदूक बरदारों ने कल शाम जिला कोलगाम के पिंबई काकरन इलाके में सतीश कुमार सिंह नामी एक मकामी शख्स को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। अगरचे जख्मी शख्स को इलाज और मुआवजे के लिए फौरी तौर पहले जिला अस्पताल कोलगाम और बाद में सिक्किम सौरा मुंतकिल किया गया, ताहम मज़कूरा शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस वाकये में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। उन्होंने गमजदा कुंबे के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी कोलगाम में एक शहरी की हलाकत की शदीद मजम्मत की है। पार्टी प्रेस नोट में पार्टी की क़यादत ने इस हमले को यहां के भाईचारे और मिलीजुली सकाफत में रखना डालने की एक कोशिश करार दिया है। और रमजानुल मुबारक के मुतबरक अय्याम के दौरान वादी के तूल व अर्ज में नमाज ज़ोहर पर मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों, बुकाजात और मसाजिद में मुख्तसर मजलिसों के दौरान उलमाए किराम माह रमजान की बरकतों और इसकी रहमतों के बारे में वाज फरमाते हैं। सोनवार श्रीनगर में वाक़ा हजरत मीर सईद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह से मुत्तसिल मस्जिद शरीफ में भी एक रूह परवर मजलिस मुनक़िद हुई, जिस दौरान आलम दीन और जामे मस्जिद मुनव्वराबाद श्रीनगर के इमाम व खतीब मौलाना मुश्ताक अहमद खोसपुरी ने मस्जिद के इमाम व खतीब पीरजादा मोहम्मद हुसैन कादरी की मौजूदगी में दीनी इस्लाम में तकवा, परहेजगारी और कई दीगर अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। हसबी मजबूर कर बोझो पेश दिमाग में क्या अब हसदस फरमोदरत रसूल करीम यह हसन नीचन दिथे कन सूर करान इत कन नार छु करान जीनिस अब हसदस कैटेगरी अकिस वन पता खुदा सब हमेशा मोहन लचन गाड़ी में सोच यह ठीक ब्या दपान खुदा सब हमेशा मोहन लचन गाड़ी अमिस ग यह मे दिन आज नाराज खुदाई तो खुदाई परदिगार दिन हसन से बीमारी नश निजात अगर माह रमजान सह तोर मे फिक्र क्या यह हसन अंदर कर नबर तेल कत बस तकवा इतनस में कहून मुछान तथ मुछान खालिद कायनात ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान यह एहसास खलवतस तो जलवतस मज एहसास कि मे पे नजर लगित ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान सह मीन हरकत सकनात क्या बल्कि मेन दिलस में मे राय वतलान तिमन पे बड़ा गहर नजर थावान ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शान यस यह एहसास यानी तकवा यह जवान से जवानी बनावान पाक यह एहसास तकवा ताजिर सनिस तुजारतस बनावान दुरुस्त। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 186 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 14,48,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क में 1,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आए। भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,058 है। शिफायाबी की शरह सरदस्त 98.76% है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज बैसाखी और महावीर जयंती के त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाए गए। इस मौके पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया। गुरुद्वारों और मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है और आज सुबह से ही वहां श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा। बैसाखी के मौके पर वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावारी में मुनक़द हुई, जहां पर सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शबद कीर्तन में शमूलियत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैसाखी और महावीर जयंती के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बैसाखी एक भारत श्रेष्ठ भारत और अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। महावीर जयंती के सिलसिले में एलजी ने कहा कि भगवान महावीर का नजरिया और तालीम तमाम आलमी इंसानियत के लिए उम्मीद की एक किरण है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी तालीमात पर मिनो-अन अमल करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने महावीर जयंती के मौके पर अवाम बिलखसूस जैन बरादरी को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की तालीमात आज के दौर में भी इंतहाई मौजून और अहम हैं। प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बैसाखी के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आज त्राल में कई जगहों पर गुरुद्वारों का दौरा किया और सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में तालीम माहौल और तालीम के बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के मकसद से एक ही साल के दौरान 50 नए कॉलेजों में 25,000 सीटों का इजाफा दर्ज किया गया है। इसके अलावा फन तामीर के 2 कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी कायम किया गया और साथ ही IIT और IIM एक रिकॉर्ड मुद्दत में कायम किए गए। एक सरकारी प्रेस बयान में कहा गया है कि सरकारी तालीमी शोबे में शफाफियत लाने की गरज से कई तरह के इस्लाहात अमल में ला रही है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मुख्तलिफ कोर्सों में जदीदियत लाने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शोहदा के अहल खाना को माली इमदाद फराहम करने के मकसद से 72 लाख रुपए के खुसूसी फलाई इमदाद को मंजूरी दी है। उन्होंने SPO जुबैर अहमद शाह के लवाहकीन के हक में 6 लाख रुपए की खुसूसी इमदाद मंजूर की। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।